हाय गम्या। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम फाइन। कैन यू हियर मी क्लियरली? यस मैम। एंड कैन यू सी दिस बोर्ड आल्सो? एवरीथिंग इज फाइन? यस यस मैम। ओके गम्या, सो टेल मी हाउ वाज योर लास्ट क्लास? थोड़ा सा रिवाइज किया जो बताया था या फिर नहीं अभी हुआ रिवाइज? यस मैम, मैम आई हैव डन मैम रिवीजन। ओके ओके, सो अभी आज क्या करेंगे हम अगम्या? लाइक आई सेड इन द लास्ट क्लास, we will continue with ratios only today. We will do some word problems, some numericals. Okay, so you have your notebook and your pen with you? यस मैम। Okay, so आज हम word problems और numericals में ज़्यादा focus करेंगे ratios के, और फिर उसके बाद we'll go into proportions. At the last part of this class हम proportions discuss कर लेंगे और थोड़े से questions भी solve कर लेंगे उसके। तो ओवरऑल जो हमारा रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस का जो पूरा चैप्टर है उसमें वो तो कवर हो जाएगा, रेशियोज और प्रोपोर्शंस खत्म हो जाएगा आज। लेकिन एक और पार्ट है आपके चैप्टर का, वो है यूनिटरी मेथड, राइट? यस मैम। ये भी है ना आपके चैप्टर में, रेशियोज, प्रोपोर्शंस एंड यूनिटरी मेथड, ये तीन टॉपिक्स हैं जो बेसिक जो मैम आई in my book I only have ratios and proportion, and ma'am unitary method is a different chapter in my book. ओके ओके, ठीक है, if it's a different chapter it's fine. So okay, I need to see the front page of your book, like I need to have a picture of that, because we are using different editions. Okay, so I need you to send me a picture of this, okay, the picture of front page after the class is over. For now we'll just focus on the concepts, ठीक है? उसके बाद we'll discuss other things like your exams and your tests, which your weekly tests, unit tests, whatever. Okay, so right now let me just continue with ratios. Okay, so ratios. Last class mein we discussed about equivalent ratios and we did some questions related to ratios, simplifying ratios, some word problems, और ये सब हमने कवर किया था। आज हम मूव करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ रेशियोज कहाँ फोकस करेंगे, उसके लिए मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? ठीक है, सो अगम्या यू कैन सी दिस फिगर। सो ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है? मैंने आपके सामने ये पिक्चर लगाई थी एक, जिसमें 2 सर्कल्स, 3 ट्राइंगल्स और 4 स्क्वायर्स थे। ओके, सो टोटल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 शेप्स हैं, है ना? ओके, सो नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, यू विल आंसर मी। आउट ऑफ दीज 9 शेप्स, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 2. And how many triangles and how many squares? 3 triangles and 4 squares. Yes. Okay. So you know that we have 2 circles, 3 triangles and 4 squares in this figure, and we also know that we can write this as in this pictorial representation in the form of a fraction. Can we do that? Yes ma'am. So how are we going to do that? Can you tell me? I will write it down here as you tell me. Ma'am, ma'am, I need to think a while. Okay, so forget about my question for now. ठीक है? So total number of shapes are 9. We know that there are 2 circles, 3 triangles and 4 squares. 2 plus 3. 5. 5 plus 4. 9. Okay. So we know कि 9 total shapes आ रही है, उसमें से 2 circle है, 3 triangle है और 4 square है, ठीक है? तो I can also write this as, out of 9 shapes there are 2 circles, out of 9 shapes there are 3 triangles,
out of 9 shapes there are 4 squares. तो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया अपनी फोटो को, अपनी जो मेरे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी उसको मैंने फ्रैक्शन स्टाइल में लिख लिया. यस मैम. ठीक है, समझ आ गया ये? यस मैम. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स, the number of triangles and the number of squares. ठीक है, ये what is the ratio of the number of circles to the number of triangles to the number of squares? So what will be my answer? It will be 2:3:4. Got it? Yes ma'am. Yes ma'am. So I can say that in a collection of 9 shapes, for every 2 circles, there are 3 triangles and 4 squares. Can I say that? Yes, ma'am. तो मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले तो मैंने उसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख लिया, फिर मैंने उसे रेशियो फॉर्म में भी लिख लिया, तो मेरे को समझ में आ गया. लेकिन इन सब चीजों का पॉइंट क्या है करने का? पॉइंट, व्हाई एम आई डूइंग ऑल ऑफ दिस? So first of all, let me just go through what I did here. सबसे पहले मैंने fraction form में किया, फिर मैंने ratio form में किया. This ratio form tells me that in a collection of 9 shapes, there are 2 circles, 3 triangles, 4 squares. And in a language that will be understood by mathematicians, in a language which you will use in your exam papers, जो कि मैंने यहाँ PPT पे भी mention किया, how will we write this? For every 2 circles, there are 3 triangles and there are 4 squares. ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं. तो what was the point of all this? मैंने क्यों 9 shapes के इस collection को समझने में इतना time लगाया? So that I can answer some bigger questions. You must have often heard on news channels or in movies कि two businessmen who made a profit of 40,000 rupees, 50,000 rupees, they made a profit of 50,000 rupees, and now they are going to go 50-50. That means 25,000 एक businessman को मिल जाएगा और 25,000 एक businessman को मिल जाएगा. 50-50, अगर मैं 50/50 फ्रैक्शन लिखती हूँ तो वो 1:1 है रेशियो, राइट? सो 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो का मतलब तो ये होता है कि अगर मेरे पास 2 रुपीज हैं तो 1 रुपी एक बिजनेसमैन को जाएगा और 1 रुपी एक बिजनेसमैन को जाएगा. लेकिन एक्चुअली में तो हमारे पास 50,000 रुपीज है ना, एंड समहाउ बाय यूजिंग 1:1 कॉन्सेप्ट we figured out कि एक बिजनेसमैन को 25,000 रुपए जाएंगे और दूसरे बिजनेसमैन को 25,000 रुपए जाएंगे. Are you with me, Agamya? Are you getting what I'm telling you here? Yes, ma'am. Okay. So coming back to shapes. Now I don't have 9 shapes. I have 18 shapes. Light तो नहीं पड़ रही, दिख रहा है ना क्या लिखा है मैंने? Yes, ma'am. ठीक है. So अब मेरे पास 18 shapes हैं. Let's say this has become now a question. ठीक है, अब ये मेरे पास एक question है कि I am given with a collection of 18 shapes. The ratio of number of circles to triangles to squares is 2:3:4. Then please tell me how many circles, triangles and squares will be present in a collection of 18 shapes. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं स्टेप्स फॉलो करूंगी. मेरा फर्स्ट स्टेप वुड बी टू add these 3 values. 2 plus 3 plus 4 is equal to 9. Why I did this? Because I know in a collection of 9 shapes, 2 will be circles, 3 will be triangles, 4 will be squares. I got that part. उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा? My second step would be to make fractions. 2 out of 9 are circles, 3
out of 9 are triangles and 4 out of 9 are squares. Okay? तो मेरे को ये पता लग गया. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? My next step is to find out कि 18 shapes में कितने circles, कितने triangles और कितने squares होंगे. So if I say, Agamya, that 2/9 of 18 will give me the answer of number of circles. Am I right when I say this? आपको समझ आया? अगर कंफ्यूजन जहां भी हो ना मेरे को बता देना. I hope you're not getting confused. I'm plotting out steps here. Yes, ma'am. ठीक है, कुछ अभी हो रहा है कंफ्यूजन क्या? No, ma'am. ठीक है. तो अभी 2/9, 3/9, 4/9 मैंने फ्रैक्शन बना दिया. Now I have to figure out 18 shapes में कितने सर्कल्स हैं. तो can I say that 2/9 into 18 will give me my answer because 2/9 of 18 shapes. और इसका आंसर क्या होगा? अगम्या यहीं से करके बता दो मेरे को. Ma'am, answer will be 4. Yes. Okay, let's move on. अब ऐसे 3/9 of 18 will give me the number of triangles. आंसर भी बताते जाओ साथ में अगम्या मेरे को. Ma'am, this will be 6. Yes, okay. Can I also say that 4/9 of 18 will give me the answer of number of squares? Yes, ma'am. So what will be the answer here? Ma'am, 8. So were you able to get this concept, अगम्या, जो मैंने अभी बोला यहाँ पे? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा डाउट अगर आ रहा होगा तो अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड. ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हो अपने आंसर को. कैसे? हमने इनिशियली 9 शेप से स्टार्ट किया था, अब मेरे पास 18 है. कहीं पर ये फिगर देख के हमें समझ आता है कि 9 into 2 is equal to 18, राइट? तो अगर मुझे पता है 9 शेप्स में इतने सर्कल, इतने ट्रायंगल और इतने स्क्वायर है, तो 18 में उसका डबल 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 हो जाएगा ना. तो into 2 4, into 2 6, into 2 8. तो मेरा आंसर चेक भी हो गया. Yes, ma'am. थोड़ी यस में दम नहीं है, लग रहा है नहीं आ रहा समझ. Yes, ma'am. ओके, चलो आई ट्रस्ट यू राइट नाउ. बट अभी मैं एक छोटा सा वो भी लूंगी टू चेक कि अगर आपको समझ में आया नहीं. ये स्टेप्स को एक बार ओवरव्यू ले लो, याद नहीं करना, कुछ समझ के करनी है चीजें, बट ओवरव्यू तो समझ आ गया. ठीक है, ये तो हमने 18 शेप्स की बात कर ली है. अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. रेशियो अब मेरा सेम रहेगा अगम्या, 2:3:4. नंबर ऑफ सर्कल्स, triangles, square. But this time total number of shapes are 27. Now Agamya will calculate for me कि out of 27 shapes कितने सर्कल हैं, कितने ट्रायंगल हैं और कितने स्क्वायर हैं. ओके? Yes, ma'am. Ma'am, the denominator will be 9 as in the previous question. Yes. Why will it be 9? Ma'am, because earlier the total number of shapes were 9. Yes, earlier was total number of shapes. Earlier total number of shapes was 9, but also here also Agamya ratio तो change भी हो सकता है ना किसी क्वेश्चन में. अभी तो सेम है, so your answer should have been कि 2 plus 3 plus 4 is 9. So 9 shapes में 2 सर्कल, 2 सर्कल, 3 ट्रायंगल और 4 स्क्वायर्स हैं. ठीक है,
समझ आ गया ना? ओके, प्लीज कंटिन्यू। Ma'am, answer will be number of circles are 6, number of triangles are 9, and number of squares are 12. Very good. Totally correct answer. You have completely understood the concept. Now we will go into questions. Okay, चलो. Now this question. तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखाती हूँ क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, ताकि आप सेकंड वाला जिसमें वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है और रेशियोज वहां पे रेशियो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट है, लेकिन मैं इजी वाला करके दिखाती हूँ एंड डिफिकल्ट वाला फिर आप करोगे. डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, चलो ये वाला कैसे होगा. You can see the question, right? Divide ₹60 in the ratio of 1:2 between Kirti and Kiran. Okay? Yes, ma'am. जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि प्रोपोर्शंस भी करना है आज. ओके, 60 रुपीज है मेरे पास, हमारे पास, और उसको 1:2 के बीच 1:2 के रेशियो में कृति और किरण को डिवाइड करना है. 1:2. तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा अगम्या? 1 + 2. ठीक है? Yes, ma'am. ₹3. What does this ₹3 tell me? ये मैं अपनी सेकंड स्टेप में इंटरप्रेट करूंगी. मेरा सेकंड स्टेप है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर ₹3 हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1:2 कृति और किरण, तो ₹1 जाएगा कृति को और ₹1 जाएगा किरण, सॉरी कितना, ₹2 जाएगा किरण को. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि 1/3 प्रॉफिट या 1/3 मनी जा रहा है कृति को और 2/3 मनी जा रहा है किरण को. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, बोर्ड भी दिखता रहना चाहिए. फोर्थ में क्या करूंगी, अब मेरे पास ₹60 है, मेरे पास ₹3 तो है नहीं, मेरे पास तो ₹60 है. तो 1/3 of 60 will go to Kriti and 2/3 of 60 will go to Kiran. Of means multiply. Can you solve this question for me and give me the answer? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Kriti will get 20, Yes. 20 and ma'am Kiran will get 40. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने तो आंसर. ठीक है, 20 कृति के पास जाएगा और किरण के पास जाएगा 40. ठीक. अच्छा, अभी एग्जाम में तो खैर टाइम नहीं होता इतना चेक वेक करने का, लेकिन ऑन आवर ओन एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना कि 20 रुपए कृति के पास गए हैं, 40 रुपीज किरण के पास गए हैं, तो ये चीज जो मेरी आई है वो सही है कि नहीं है. तो आप देखो 20 + 40 60 आ रहा है, जो कि सही है. मेरे को ₹60 ही डिवाइड करना था. और मैं एक और चीज से चेक कर लूंगी, 20/40. तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, 1/2, और वो भी सही है. राइट? सो योर आंसर इज कंप्लीटली राइट. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बिजनेसमैन वाला एग्जांपल दिया था कि कैसे हाउ मनी इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो. राइट? Yes, ma'am. सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगम्या, वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. थोड़ा वैल्यू बढ़ी है इसमें और रेशियो भी मतलब ऐसे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं. 1:2 की जगह 3:5 to 7 दे रखा है. तो आप फिर भी इसे सॉल्व करो एंड आई एम सॉल्विंग विद यू एंड लेट्स सी if we can get to the right answer. Okay?
Ma'am, I have got the answer. Okay, please tell me. Ma'am, 3 upon ma'am, for the first one, it is 690, and for the second one, that is 5, it is 1150, and for the third one, it is 1610. वेरी गुड अगम्या, बिल्कुल ठीक आंसर है आपकी, बिल्कुल ठीक है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप उसमें तो जैसे एग्जाम पेपर में तो आपने लिख दिया, बिल्कुल न्यूमेरिकली ठीक आंसर लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। यू विल ऑल्सो मेंशन कि ए विल गेट 690 रुपीज, बी विल गेट 1150 रुपीज एंड सी विल गेट 1610 रुपीज। ओके, यस मैम। ऐसे लिख कर आना है एग्जाम में जो भी आपको होता है। बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये जो सेवेंथ और सेवेंथ क्वेश्चन है। इफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 9:5, तो क्या करो आप, ये हम करना चाहिए या फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें प्रोपोर्शन भी करना है। सो आपको आइडिया मिल रहा है, एक काम करो आप अगम्या, ये सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ो एंड टेल मी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, और व्हाट यू डू, यू एक्सप्लेन टू मी कि कैसे होगा सेवेंथ क्वेश्चन। Yes, ma'am. Ma'am, the ratio of girls and boys are given 9:5, and the total strength of the school is 448, and we have to find the number of girls. Okay, can you do it? What will be the steps? Just tell me the steps. कैसे चलोगे आप? Ma'am, first we'll add the ratios to get the denominator, that is 14, and we'll for the number of boys, that is 9/14, and we'll multiply it by 448, and the answer will be the number of boys. And for the number of girls, for the number of girls, 5/14 into 448, and we'll get the number of girls. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव ऑन, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। आई विल सेंड यू जो पिछली क्लास के क्वेश्चन है वो भी सेंड कर दूंगी, और ये वाली क्लास के भी जो हम नहीं कर रहे हैं अपने हाथ से सॉल्व, वो हाथ से सॉल्व करके मेरे को सेंड करनी है उनकी पिक्चर्स अगम्या, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ओके, so अगम्या, ये वाला क्वेश्चन वुड यू लाइक टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट? ये वाला 6th क्वेश्चन जो लिखा है, सेकंड नंबर पे 6th क्वेश्चन लिखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ टेक्सटाइल मिल। यस मैम। तो आप इसे करो, स्टार्ट सॉल्व करना, ठीक है? the sixth one, the male and female. जी, yes, please read the question very carefully and then start solving. Then if you're not able to do it, मैं देख, आप कर लोगे वैसे, बट आप ट्राई करो एक बार, ओके? The answer is 71.25. What is the answer? Ma'am, 71.25. Okay, unmute yourself, Agamya. It's okay. Okay, Agamya, so first of all, it says the ratio of number of male and female in a textile mill is 5:3. And we were supposed to find out the number of female workers in the mill. So can the female workers in the mill be in decimal? No, ma'am. Why not? Because ऐसे तो नहीं होगा कि, है ना, 470 women होंगी और आधी, ऐसे तो नहीं होगा ना? Decimal form में तो it cannot be. It needs to be in a whole number, right? Yes, ma'am. But ma'am, because while simplifying, ma'am, my answer was coming in decimals. Okay, so tell me the approach that you used first. Step by step बताना कैसे किया पूरा. Ma'am, first I added 5 and 3 to get the denominator, and अगम्या म्यूट हो गया आपका. Ma'am, first I'll add 5 and बेटा म्यूट हो रहा है आपका बार बार, तो वॉइस कट हो रही है.
Ma'am, first I'll add 5 and 3 to get the denominator 8, and then I'll write 5 upon 8 and multiply it by 115. Yes. Okay. Ma'am, then I'll No. Okay. तो हो गई ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया गम्या। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में आता है ना, तो रीड इट वेरी केयरफुली। सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, इट सेज दैट देयर आर 115 मेल वर्कर्स, नॉट वर्कर्स। सो what does this mean? This means अगर उसने लिखा होता 115 workers, so you would have known that the total number of workers is 115, जिसमें से कुछ हमारा females होंगे और कुछ हमारे males होंगे, right? Yes, ma'am. But actually में ये 115 is not the total number of workers. It is actually the number of male workers only, alright? Yes, ma'am. तो इसीलिए थोड़ा सा हमारी अप्रोच गलत होगी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज 448, तो मतलब वो 448 है, वो गर्ल्स को भी इंक्लूड करते हैं, वो बॉयज को भी इंक्लूड करता है। तो हम समझते हैं कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में। चलो मैं समझा रही हूँ। वहां तक आपका स्टेप बिल्कुल ठीक था। सबसे पहले वी नो 5:3 है रेशियो ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मेल्स, मेल इज टू फीमेल रेशियो इन अ फैक्ट्री, इन अ मिल फैक्ट्री, ठीक है, जहां पे वर्कर्स हैं। मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स का जो रेशियो है वो है 5:3। तो ये तो हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप है मैंने ऐड कर लिया। क्यों ऐड किया? सो दैट आई नो 8, अगर मेरा टोटल आ रहा है तो 8 का क्या मतलब है? 8 का मतलब है 5 मेल वर्कर्स, कि अगर उस फैक्ट्री में 8 वर्कर है तो उसमें से 5 मेल वर्कर्स हैं और 3 फीमेल वर्कर्स हैं। ये बात समझ आ गई? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। जैसे अगम्या ऊपर वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि टोटल स्ट्रेंथ इज 448, तो हमने वहां पे क्या किया? हमने 9/14, ये क्योंकि मैं डिफरेंट क्वेश्चन का बता रही हूँ तो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर पेन हियर। 9/14 into 448 कर दिया। क्यों किया? Because I know 9/14 of 448 will be the number of boys in that school. That's what I did there. But इस क्वेश्चन में जो 115 हमें यहाँ पे दे रखा है, that is not the total number of workers in the mill. It is actually the number of males. तो हमारे पास पता है क्या है ये इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन है कि 5/8 into total number of workers, जिसको मैं x assume कर रही हूँ यहाँ पे, is equal to 115. Does this make sense to you? Yes, ma'am. यहाँ मुझे आपको समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पे? Because we didn't Yes, know ma'am. the total number of workers, we knew this value. हमें पता लग गया कि male workers 115 है. That's why we assume the total number of workers as x. ठीक है? तो अब Yes, ma'am. क्या होगा? What is the number of female workers in the mill? ठीक है, तो अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को x assume कर रखा है, तो जो फीमेल वर्कर्स होंगी वो होंगी 3/8 into x, करेक्ट? अब मेरे को x चाहिए, अगर मेरे को फीमेल वर्कर्स चाहिए तो x मुझे कहाँ से मिलेगा? x मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने 5/8 into 115 कर दिया। वो नहीं करना था क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं था, वो मेल वर्कर्स था। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने x assume किया। आप कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस? आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes, ma'am. Ma'am, now can I try doing this question? सॉरी बेटा। Ma'am, now can I try doing this question? Yes, please continue from this point onwards and tell me the number of females, okay? Ma'am, answer is 184.
Yes, 184 is what? It is the total number of workers. and हमारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? The number of female workers. So ma'am, we'll subtract 115 from 184 to get female workers. Yes, that's very smart. Yes, okay. Your answer is correct. Okay. What will be the answer if you subtract 115 from 184? Ma'am, I have not yet subtracted it. Ma'am, I'm doing. Okay, dear. Ma'am, 69. Answer will be 69. Your answer is correct and your approach is brilliant. Okay. So you have understood ये वाले टाइप क्वेश्चंस तो समझ आ गया. अच्छा, एक तो तुमने मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हो कि ये वाले क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है ना? Yes, ma'am. तो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस तो होंगे? Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, I have a question of these type. ठीक है सब पक्का ना? एक बार मैं आपकी बुक अरेंज कर लूंगी, मुझे आप इसकी फ्रंट टू इसकी भेज देना, क्योंकि मैं डिफरेंट एडिशन यूज कर रही हूँ. फिर भी सेम ही बात है, कुछ ऐसी टेंशन की बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. अच्छा चलो, अगम्या हमारे पास लाइक अराउंड ऐसे बचे हैं 15-16 मिनट्स बचे हैं. मुझे एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है, तो उसके लिए आई विल जस्ट गो बैक टू आवर लास्ट कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज. ठीक है, आंसर दिख गया आपको? देखा तो नहीं आंसर? No, ma'am. Ma'am, I have not seen. Okay. So last time, Agamya, if you remember, I told you about equivalent ratios, और हमने कुछ ऐसा किया था last time कि 6/9, 2/3, 14/21 ऐसा एक क्वेश्चन किया था एकदम लास्ट क्लास में, है ना? और मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों रेशियोज हमें मिले ना, ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 14:21, 6:9 and 2:3 are equivalent ratios. Why? Because अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी हमें 2/3 मिलेगा, और 14/21 को भी सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 मिलेगा. करेक्ट? Yes, ma'am. This part is clear to you? That is why we call these as equivalent ratios. Clear? Okay. तो अब इस स्लाइड में, अच्छा सुनो, मैंने जैसे ये छोटी दिख रही होगी ये स्क्रीन, अनकंफर्टेबल तो नहीं लगता? ये स्क्रीन छोटी दिख रही है और पीपीटी बड़ी लग रही है? No, ma'am. Ma'am, when I need, I make you large. Ma'am, make you massive. Very smart. You're a very smart girl, Agamya. चलो ठीक है. अब ये तो मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशियोज का बता दिया. ठीक है, अब इस यहाँ पे क्वेश्चन है कि गिव टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4. तो कैन यू गिव मी एन आंसर? Yes, ma'am. बताओ मेरे को इसके दो इक्विवेलेंट रेशियोज बता दो 6:4 रेशियो के लिए. Yes, ma'am. Ma'am, I have got one, that is one equivalent ratio, that is 3:2. Correct. So what you did here, you simplified 6/4 to get 3/2. To be more specific, what you did, you divided 6 with 2 and you divided 4 by 2. So you got 3/2. Correct? That's what you did. LCM या जो भी डिवाइड किया, इससे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 2 को ही किया डिवाइड, तो 3/2 मिल गया. अच्छा चलो, हम ये तो हमें समझ में आ गया. अब एक और चीज है जिससे यू कैन गेट द सेकेंड. 6/4 है, अगर मैं न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आई गेट 12/8. ठीक है? तो अच्छा, अब सब कुछ ऊपर का भूल जाओ, सिर्फ 12/8 को देखो. 12/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा?
पहले तो ये 6/4 होगा, फिर ये 3/2 हो जाएगा। यस मैम। तो 12/8 भी एक इक्विवेलेंट रेशियो है 6:4 के लिए। तो हमें 6:4 के लिए जो दो और इक्विवेलेंट रेशियोज मिले वो हैं 3/2 और 12/8। एक एग्जाम्पल में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया था, और एक एग्जाम्पल में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गई चीज। चलो अब अगर मैं 6/4 है 6/4 है, उसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मेरा क्या आंसर होगा अगम्या? 3 से मल्टीप्लाई किया है दोनों को। 18/12। Right. So equivalent ratios can be generated by multiplying or dividing the same number with numerator and denominator. Correct? यस मैम। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। Therefore, we can get equivalent ratios by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number. ठीक है, ये इस तरीके से हमें जो है इक्विवेलेंट रेशियोज मिल जाते हैं। चलो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। क्या था पॉइंट इतनी सिंपल सी डिस्कशन का? व्हाई डिड वी डिस्कस सच अ सिंपल थिंग? बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज the favorite number of mathematicians, which is x, in all the questions that are going to come from this point onwards. So if I have 6/4 as a ratio, and if I multiply the numerator and denominator by a number x, ठीक है, तो 6x by 4x मिल जाएगा हमें। So this is an equivalent ratio. These two are equivalent ratios, and the factor which I multiplied with numerator and denominator is x. Okay. चलो ये बात हमें समझ आ गई कि हम ये भी कर सकते हैं। x भी एक नंबर है, उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया ये मैंने? Because we are going to the last question, maybe the last question of this class. Yeah. चलो two numbers are in the ratio of 11 to 12 and their sum is 460. So we need to find what? Can you tell me अगम्या क्या find करना है हमें? मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, find the numbers। ठीक है, चलो ठीक है। What? अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा यहाँ पे। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। अभी इस स्लाइड में मेरे पास ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन अभी मैं ये समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। इलेवन इज टू 12 है, दो नंबर्स का रेशियो। मैम द बोर्ड इज शाइनिंग। ओके, यस मैम। चलो ये कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 11:12। इस बात का मतलब क्या है, पहले तो यही समझना होगा। दो नंबर्स का रेशियो 11:12 कैसे हो सकता है? एक बार के लिए हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। 11 × 2 22 होता है और 12 × 2 24 होता है। ठीक है, 22 और 24 दो नंबर्स हैं। ये एक फ्रैक्शन है 22/24, ये एक रेशियो भी है 22 to 24। अगर मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर देती हूँ तो आई विल गेट 11 to 12। कैन आई से दैट दीज two numbers are in the ratio of 11 to 12? Yes, ma'am. That is the meaning of this question. तो कुछ तो अभी यहाँ पर तो क्या हुआ, 11/12 में मैंने into 2 किया तो मेरे को 22/24 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे तो मेरे को नहीं पता वो कौन से दो नंबर हैं,
जो कि 11:12 के रेशियो में है, और बल्कि उन दोनों नंबर का सम भी 460 है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी उन दो नंबर को? उसके लिए आई विल हैव टू यूज x। मैं क्या करूंगी, मैं इसको और इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, x फैक्टर यूज करूंगी मैं यहाँ पे। 2, 3, 4 किसी से भी कर सकते हैं, है ना? ये तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज। अगम्य कहाँ चले गए आप? वीडियो बंद हो गई आपकी। हाँ मैम आई एम हियर ओनली। ओके, सो मैं x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस मैम। 11x by 12x, ये हो गया, ये मेरा एक इक्विवेलेंट रेशियो मिल गया मेरे को। ठीक है, सो दीज टू नंबर्स आर आल्सो इन द रेशियो ऑफ 11:12। अब वो कह रहे हैं एंड देयर सम इज 460। इन दोनों नंबर्स का सम 460 है। सो हाउ कैन आई राइट दिस? कैन आई राइट इट लाइक 11x plus 12x is equal to 460? Can I do this? यस मैम। समझ आई है पूरी बात? यस मैम। Do you want me to repeat this? क्या ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैम आई थिंक you may repeat. Okay, so let me just revise what I did here. Two numbers are in the ratio of 11:12. I know from an example that 22 to 24 are in the ratio of 11:12. Why? Because 22 by 24 को अगर मैं simplify करती हूँ, क्योंकि it is a ratio, 22 to 24 एक ratio है, इसको मैं कैंसिल करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी दोनों नंबर्स को, तो मेरे को क्या मिलेगा? 11 to 12 मिलेगा, राइट? So I can say that 22 to 24 is in the ratio of 11 to 12. ऐसे कोई और दो नंबर्स हैं जो कि 11 to 12 रेशियो में है। ठीक है, अब मुझे वो नंबर तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन मेरे को ये पता है कि वो 11 to 12 रेशियो में है। वो नंबर मुझे मिले कैसे होंगे? अगर मैंने 11 और 12 को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि वो नंबर x है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर मेरा बन गया 11x और डिनोमिनेटर बन गया मेरा 12x। ठीक, अब वो जो दो नंबर हैं जो कि 11 to 12 रेशियो में है, उनका सम 460 है। तो ऊपर देखना, यहाँ पे 11x plus 12x is equal to 460। क्लियर? समझ आ गई पूरी बात? कैन यू सॉल्व फॉर x? अगम्या यस मैम। सॉल्व करके बताओ x के लिए मेरे को। मैम आई थिंक आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैम। ओके, मुझे बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझ आया आपको? मैम देयर यू हैव रिटन 11x upon 12x। ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस पार्ट? ये वाला सॉल्व तो कर सकते हो आप? यस मैम। ये सॉल्व करो, आपको मैं फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगी समझने के लिए। पहले इसे सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा ना आपका, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैम द आंसर कैन कम इन मैम डेसिमल। बेटा डेसिमल में आ नहीं रहा आंसर।